أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم آمین. بالکل جی. مفتی عثمان غنی نائب رئیس جامعہ دارالعلوم فتح کراچی اور اس کے ساتھ ساتھ فاضل جامعہ صفا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا ہے. میں ہوں مختار احمد اور جیسے کہ پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اور پروگرام کے آغاز میں ہی تمام لوگ جو کہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں اور وقت نکالنے کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. اور پروگرام جس کا نام ہے آسان رمضان اس میں ہم تمام لوگوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. وہیں ہمارے آج کے گیسٹ بھی موجود ہیں. ہم چاہیں گے ان کو بھی ہم باقاعدہ طور پہ ویلکم کریں. اس کے ساتھ ساتھ نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ندا راجپوت. سب سے پہلے آپ کو ویلکم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج جو دو مخصوص گیسٹ موجود ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ ہمدرد ہاتھ ایک ایسی آرگنائزیشن ایک ایسی این جی او ہے جو کہ میں کہوں گا کہ کفالت کر رہی ہے. کفالت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کاروبار دے رہی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غریب نادار لوگوں کے لیے بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ کرنے کی سعادت ان کو نصیب ہوئی. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. لیکن آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی کے کام آتا ہے تو وہی شاید کسی کے لیے اچھا ہوتا ہے. لیکن یہ چیز غلط ہے. ہمیں ہمیشہ ایسے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. ایسے لوگوں کے کام آنا چاہیے جن سے ہمیں امید بھی نہ ہو کہ وہ ہمارے اگینسٹ میں کوئی کام کریں گے. میرے ساتھ اس وقت دو گیسٹ موجود ہیں. مزمل صاحب اس وقت موجود ہیں جو کہ فاؤنڈر ہیں ہمدرد ہاتھ کے. اسی طریقے سے میرے ساتھ رافع موجود ہیں جو کہ ہمدرد ہاتھ کے فاؤنڈر بھی ہیں. دونوں کو ویلکم کریں گے. سر سب سے پہلے تو آپ دونوں کو جو ہے خوش آمدید کرتے ہیں اپنے پروگرام میں آسان رمضان میں. سب سے پہلے ظاہری کے آغاز میں ہی میں چاہتا ہوں کہ شیف جو ہے ہماری وہ بھی اب لگی ہوں گی کچن میں کام کرنے کے لیے. ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. ارسلہ طاہر کچھ دیر میں آنے والی کیونکہ اب سلسلہ تھوڑا سا یہ کہ عید کی گہمہ گہمی بھی ہے اور اس گہمہ گہمی کے حوالے سے جو ہے تھوڑی سی جو ہے وہ لیٹ ہو گئی ہیں. تو وہ جیسی آئیں گی تو وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گی. تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ حمد و ثنا کی جانب بڑھتے ہیں اور ندا راجپوت میں چاہوں گا کہ آپ حمد و ثنا سے آغاز کریں. جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ
پر سرور انبیاء پھر نہ معبود و بندے میں پردہ رہا پھر نہ معبود و بندے میں پردہ رہا اور یوں ملائکہ نے حضرت سے چھپ کر کہا یوں ملائکہ نے حضرت سے چھپ کر کہا ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اور آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو اور ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 ماشاءاللہ جزاک اللہ. اب میں کر لیتی ہوں. السلام علیکم ناظرین. میں تھوڑی سی دیر کے بعد آئی ہوں. آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں میں اپنی جانب سے بھی اور بہت ساری مبارکباد کہ رمضان المبارک جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں گزارے اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام کو بھی اچھے انداز میں لے کے چل رہے ہیں. لیکن اس وقت ہو چکا ہے شیف کی طرف جانے کا. بالکل جی, شیف کی جانب ہم بڑھیں گے اور آج ارسلہ تھوڑی لیٹ ہو گئی کیونکہ عید کی گہما گہمی کا سلسلہ جاری ہے اور اسی وجہ سے ٹریفک میں کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ جی لوگ جو ہے وہ مصروف تو ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ ٹریفک میں بھی لوگ کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ سلسلہ. شیف کی جانب بڑھیں گے کیونکہ شیف جو ہے وہ اب کچن میں موجود ہے اور کیا کچھ بنا رہی ہے یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. آج شیف نے کیا تیاری کی؟ شیف کیا تیاری شروع کی آج آپ نے؟ بنانے جا رہے ہیں. السلام علیکم. پہلے ٹھیک ہے, کیا بنانے جا رہے ہیں؟ پہلے سلام کر لیں. وعلیکم السلام. حال چال پوچھ لیں. ٹھیک ہے, ہم آج بنانے جا رہے ہیں مٹر پلاؤ. جی کیا بات ہے بھائی, مٹر پلاؤ جو ہے وہ آج تیار ہو رہا ہے اور میرے خیال سے یہ ارسلہ کی فرمائش تھی. بالکل, ارسلہ روز ایک فرمائش کرتی ہے اور اس پہ ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کر دیں. زبردست. بس, اور زیادہ کچھ نہیں. اور ساتھ شامی کباب میں گھر سے بنا کے لائی ہوں, لیکن شامی کباب ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو آخری عشرے میں, صحیح, تاکہ ہم بتا سکیں کہ عید کی تیاریاں چل رہی ہیں. کیا بات ہے بھائی. چلیں آپ جلدی اپنا کام جو ہے وہ جاری اور ساری رکھیں. میں چاہوں گا کہ اب وقت جو ہے نا ویسے ہی مختصراً ہوتا ہے, ہمارے پروگرام کا فارمیٹ بھی جو ہے نا مختصراً ہے. تو میں سب سے پہلے تو اسپانسرز کی جانب بڑھیں گے اور آج بھی اٹائر میں دیکھ رہا ہوں کہ ارسلہ کا بڑا خوبصورت ہے اور ارسلہ کے اٹائر کے بارے میں اگر بات کی جائے تو سبلائم جو ہے وہ ایک ٹرینڈ, سبلائم ٹرینڈز ایک ایسا برانڈ ہے جو کہ خاص کر کے پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنل لیول پہ اب کام کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے ان کے ڈریس کو کلرز دیکھ لیں آپ اور انداز دیکھ لیں, اس طرح زیبتن کیا ہوا ہے. تو یہ بڑا خوبصورتی سے, اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے کوئی برانڈز کو جو ہے وہ زیبتن کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں عید پہ اچھے نظر آئے, تو آپ نے ضرور سبلائم ٹرینڈز کو جو ہے وہ آپ نے وزٹ بھی کرنا ہے اور ان کا جو فیس بک اور اس کے بعد انسٹاگرام پیج ہے اس کو فالو کرنا ہے. بات کرتے ہیں اگر میرے حوالے سے تو جی حبیب کلیکشن, جن کی کلیکشن بڑی مشہور ہے, ریگولر بیسس پہ ہمیں کپڑے پرووائڈ کر رہے ہیں اور ہم روزانہ کی بنیاد پہ جو اچھے نظر آ رہے ہیں وہ صرف ان کی بدولت نظر آ رہا ہے. تو آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ اب عید ہے, عید کے بعد جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی شادیاں. تو اگر آپ نے بھی اپنی شادی کی کوئی بکنگ کروانی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے نظر آئیں, دھولا بن کے اچھے نظر آئیں, اگر آپ پینٹ کوٹ کی ورائٹی چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بھی شیروانی کے حوالے سے, تو آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے. اگر عید سے پہلے آپ بکنگ کروائیں گے تو 30 to 40% آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. گیسٹ کی جانب پڑیں گے, اور بھی برانڈز ہمارے ساتھ ہیں جن کا تعاون کا بہت شکریہ. الطاہر کلینک کا بھی, اس کے ساتھ ساتھ ساراس پرفیوم
परफ्यूम और इसके साथ साथ HK मार्केट पॉइंट। आपका बहुत शुक्र है कि आप लोग हमारे साथ ताउन करते हैं। बाकी किचन में जब जाएंगे तो तब हम आपको बताएंगे और कौन कौन से हमारे ब्रांड्स हैं, लेकिन इस वक्त जो है हम जाएंगे अपने गेस्ट की जानिब, क्योंकि इस वक्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब, ज़ाहिर फाउंडर भी हैं आप माशाल्लाह, और कितने टाइम से इस ऑर्गेनाइजेशन को आप रन करें? हमदर्द हाथ नाम किसने सोचा था और कैसे ये इवेंट हुआ? सर पिछले 9 साल से हम ये चला रहे हैं। हम 15-16 साल के बच्चे थे, 8 स्कूल में बैठे थे। हमने 75 डब्बों से शुरू किया था, 100 भी पूरे नहीं थे। 75 डब्बों से हमने शुरू किया था सिलसिला, और आज माशाल्लाह 3 मुख्तलिफ शहरों में 25-26 दस्तरखान हैं हमारे। हम रोज़ तकरीबन 12,000 लोगों को खाना खिलाते हैं, 12,000 से ज़ायद लोगों को खाना खिलाते हैं। हम लोग की राशन ड्राइव चलती हैं तकरीबन। इस साल भी अभी आज ही मैं एक राशन ड्राइव करके आया हूँ खिपरो शहर में, जो तकरीबन यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। उसके बाद बहुत थका हुआ हूँ, फिर यहाँ आया हूँ आपके पास। लेकिन ये कैसे आता है, इतना जज्बा कैसे है कि आप इतनी ज़ाहिर बचपन से शुरुआत की? और बहुत अच्छी बात है, ये अल्लाह ताला भी ना कुछ लोगों को चुनता है, और वो जब चुन लेता है तो फिर उसके बाद सिलसिला जो है वो आगे हो जाता है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर कि बचपन से लेके अब तक आप जो है वो काम कर रहे हैं, कुछ फ़र्क नज़र आया खास करके जो आपने ज़ाहिर लोगों को डोनेट करना शुरू किया है? रोटी बैंक के बारे से ज़ाहिर मैं इनसे बात करूंगा ज़रूर, राफे से, उसमें भी आएंगे, लेकिन कुछ अब पहले जब कर रहे थे उसमें और अब जब आप कर रहे हैं तो कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? बिल्कुल सर, 9 साल बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रजिस्टर हो गए माशाल्लाह इस साल। ये तो 75 डब्बों से शुरू किया था, घरों से पैसे लाते थे, 75 डब्बे बांटते थे। अब इतने डोनर्स, इतनी बड़ी टीम माशाल्लाह हमारे पास है, सब हम लोग को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, इसलिए सब चल रहा है। हम लोग की तो कोई ताकत नहीं है, सारा काम अल्लाह करवाता है, अल्लाह ही अपने बंदे चुनता है। हम लोग तो बस कोशिश करते हैं और काम हो जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा, पीछे जो है वो वीडियो भी चल रही होगी, और मुझे मेरे ख्याल से वर्टिकल चल रही है, उसको हॉरिजॉन्टल कर दें, क्योंकि वीडियो जो है मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप देख लीजिएगा। लेकिन अब बढ़ेंगे राफे की जानिब। राफे रोटी बैंक के नाम से आप लोगों ने काम शुरू किया, पैसे भी ले रहे थे, रोटियां भी दे रहे हैं लोगों को, मतलब ज़ाहिर वैसे आप लोग हेल्प आउट कर रहे हैं, लोगों को डोनेशन भी दे रहे हैं, आप जाके जो है वो राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा क्यों कि आपने रोटी बैंक बनाया और पैसे भी चार्ज करने लगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपकी टीम का, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी और हमें इज़्ज़त दी। देखें, रोटी बैंक और फ्रूट और सब्ज़ी स्टॉल जो हमने 2-3 साल पहले सिलसिला शुरू किया, उसकी जो मेजर वजह थी वो ये थी कि कोविड के बाद जो मिडिल क्लास और सफ़ेद पोश फैमिलीज़ जो टूट सी गई हैं, एक हमारी इकोनॉमिक टर्म से कहते हैं इनकम गैप, अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। तो इज्जत नफ्स पे बात ना है, सिर्फ इसलिए 25 रुपए की रोटी 10 रुपए में, ठीक, और 200 रुपए की एक 2-2.5 किलो की हम सब्जियों की और फलों की थैलियां बना के रखते हैं, जिसके अंदर मेन आलू हो गए, प्याज हो गया, या फलों में आए तो आपके केले हो गए, सेब हो गए, इनकी हम थैलियां मुख्तलिफ चेंज होता रहता है मेन्यू। तो कोई भी आता है तो वो 50% ऑफ पे अगर लेके जाता है तो पहली चीज़ तो उसकी इज्जत नफ्स पे बात नहीं आती, और दूसरी चीज़ ये है कि वो इफ्तारी के टाइम जो है वो अपने फल फ्रूट खा लेता है, और फिर रात को वो उसी रोटी से सस्ती और उन्हीं सस्ती सब्जियों से अपने घर का जो है वो खाना पीना करता है, उसके बच्चे भी खुश होते हैं, और कहीं ना कहीं हमें या हमारे डोनर्स को उसकी दुआ भी मिलती है। तो सारा सिलसिला जो है वो लोगों की मदद करने का है कि उनकी इज्जत नफ्स पे बात ना है। बाकी इफ्तारी, सहरी और बाकी चीज़ें तो हैं वो हम अल्लाह की रज़ा में करते हैं। ज़बरदस्त। ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा, बहुत सारी और भी बातें जो कि हमें करनी हैं, और ज़ाहिर नाथ का भी मौजूद है, इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं दोनों गेस्ट इस वक्त, और हमारे साथ मुफ्ती साहब भी मौजूद है। बहुत सारी और भी बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा खूबसूरती एक कहते हैं प्रोग्राम बड़ी खूबसूरती से जो आपके लिए पेश किया जा रहा है, जिसका नाम है आसान रमज़ान। फिर से करते हैं आपको खुशामदीद आसान रमजान में, और बड़ी ही देर से मैं इंतजार कर रही थी आप लोगों से बात करने। आप समझ गए थे मैं कहाँ चली गई थी ना? बिल्कुल जी, मुस्कुराने में चली गई थी वो एक अलग सिलसिला है। खैर, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले, चूंकि जब तक मैं खुद अपनी ज़बान से खुद ना कहूँ कि मैंने बड़ा ज़बरदस्त ड्रेस पहने और मैं अपनी डिज़ाइनर को जो है अप्रिसिएशन ना दूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो मैं ज़रूर बात करूँगी अपने अटायर की, अपने ड्रेस की, जो मुझे भेजा है बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत के साथ, सबलाइम ट्रेंड्स। और सबलाइम ट्रेंड्स ऑफिशियल इनका इंस्टाग्राम पेज है, आप जाइए, सर्च आउट कीजिए, अपने लिए भी कोई ज़बरदस्त ड्रेस लीजिए। और इस वक्त जो है कोई खास ईद डिस्काउंट आया हुआ नहीं, मेरे ख्याल है वो जो शादियों वाला डिस्काउंट है, कोई ना कोई डिस्काउंट चल रहा है, या कोई नई जो है रेंज आई हुई है, ईद की तो रेंज पक्का आई है। रमजान का नाम लेंगे तो शायद डिस्काउंट मिल जाएगा अरसला की वजह से। हाँ, ये हो सकता है, और जितना मिले मुझे भी जरूर बताइएगा मैसेज करके कि इतना मिल चुका है। खुशबू भी आ रही है। हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। और आज शेफ से मेरी बात नहीं हुई, शेफ बना रही है मेरी पसंद पे, मेरी फरमाइश पे मटर पुलाव। जी शेफ, कहाँ तक पहुंची आप?
अस्सलाम वालेकुम, कैसी और सलाह? आवाज़ आ गई? अल्लाह तेरा शुक्र है, आवाज़ आ गई। कोई बात नहीं, मैं बना रही हूँ मटर पुलाव और शामी कबाब, और मैंने काम शुरू कर दिया था, टाइम कम होने की वजह से मैंने इसमें सिर्फ ऑयल डाला। आपको पता है रिवायत, बरसों की रिवायत है और आज का अंदाज है, तो हम रिवायतों वाला मुगलई खाना मटर पुलाव जो होता है वो बना रहे हैं। ठीक है, हमने ऑयल के अंदर प्याज ब्राउन करी, प्याज ब्राउन करने के बाद हमने इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, पूरा खड़ा गरम मसाला डाला, इसमें ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्च है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची मैंने कूट के डाली है, तेज़पात पत्ता है, दालचीनी है, ये सब मैंने डाल के, और ज़ीरा, दोनों ज़ीरे, शाही ज़ीरा, काला ज़ीरा, दोनों हमने डाल के इसे अच्छी तरह भूना है। फिर उसके अंदर हमने प्याज वो डाल दिए, मटर को हमने गलने छोड़ दिया है। जब मटर थोड़ी देर गल जाएंगे 5 से 10 मिनट में, फिर हम इसमें डाल देंगे ये चावल। ठीक हो गया। और फिर अच्छा, मैंने इसके अंदर थोड़ा स्पाइस रखने के लिए मैं हमेशा, जैसे अगर मैं 3 गिलास चावल बना रही हूँ तो मैं ½ टीस्पून इसमें लाल मिर्च डालती हूँ। मटर पुलाव में लाल मिर्च? जी, ये आपकी सीक्रेट रेसिपी है जो आप सीक्रेट नहीं, ये मैं डालती हूँ कि खाली चावल खाने में भी कोई फ्लेवर आए। अच्छा, खाली उबले हुए राइस ना लगे जैसे होता है। तो शायद चावलों का कलर चेंज नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ½ टीस्पून डाल रहे हैं ना, 3 गिलास मतलब ये है कि 1 किलो के करीब। ठीक हो गया। और हाँ, मैंने इसके अंदर कुटा हुई सौंफ और कुटा हुआ धनिया भी डाला है ताकि थोड़ा यखनी का फ्लेवर और खुशबू आ जाए। और अब मैं यखनी टाइप बनने दे रही हूँ। जब वो थोड़ा सा हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर चावल डालूंगी। और ये 3 गिलास चावल है, मैंने इन्हें भिगो के रखा हुआ। और कबाब मैं घर से बना के लाई थी, उन पे अंडा लगा के उन्हें फ्राई करूंगी। चले ठीक है, बस उसके बाद मैं खाने आ जाऊंगी। आज मैं किचन में जरूर आऊंगी। बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम आ जाते हैं अपने मेहमानाने गिरामी की तरफ। अच्छा, थोड़ी देर पहले जो है बड़ी तफसील से मुख्तार ने तो बात कर ही ली थी, वेलफेयर का काम, लोगों की खिदमत करना और इस तरह से सोचना कि रोटी बैंक होना चाहिए। किसी को आइडियलाइज किया था आपने, किसी को बहुत करीब से देखा, खुदा ना खास्ता कोई फैमिली में या पड़ोस में, ये ख्याल कहाँ से आया और क्यों आया? देखें, सबसे पहले अगर चैरिटी की बात करें तो हर पाकिस्तानी का एक ही रोल मॉडल होना चाहिए, जो कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब। और उसके बाद हमने जो बड़ी एनजीओ है, मैं नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली क्योंकि कोई एक बुरा ना मान जाए, लेकिन हर किसी ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया। किसी ने हमें दस्तरखान लगाना सिखाया, किसी ने हमें हेल्थ सेक्टर में काम करना सिखाया। हम एजुकेशन पे बहुत काम करना चाहते हैं। जाहिर है यंग एनजीओ है, खुद स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा रुझान भी इस तरफ है कि जो स्टूडेंट्स फीस ना पे करने की वजह से या अपने किसी भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से एग्जाम्स में ना बैठ पाएँ, पढ़े लिखे नौजवान होने के नाते हमें बहुत बुरा लगेगा कि ऐसा कोई भी बच्चा हो जो आगे ना बढ़ पाए। आपको पता है पाकिस्तान का सर्वे निकाला जाए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक सर्वे के तहत 30,000 गोस्ट स्कूल्स हैं, विच मीन्स कि वो स्कूल तो हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं, 7,000 से ज़्यादा जो है वो सिर्फ सिंध में है। सैलरी लेकिन पूरी जारी होती है। देखें, मैं नहीं समझता कि इस प्रोग्राम का मकसद ये होगा कि हम किसी पे तनकीद करें, बल्कि क्यों ना हम आगे बढ़ें और हम जो यंग नौजवान हैं वो यूनाइट होके हमारे मुस्तकबिल को पढ़ाएं। क्योंकि देखें, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि हम ही लोगों में से 25-30 साल बाद कोई एक ओहदे पे बंदा आएगा, कोई इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, और जो हमारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं उसको इंशाल्लाह एक ऐसा रुझान देगा कि हम भी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हमें किसी से लोन नहीं लेना पड़ेगा। और ये एक बहुत लॉन्ग विजन है जिसको अभी, क्योंकि हम जैसे मुजम्मिल ने बताया कि हम रजिस्टर हो गए तो हमारे हाथ खुल गए, तो हम खाने के साथ साथ किसी की भूख मिटाने के साथ साथ उसको रोजगार लगा के देंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि इस पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो और इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर हम तो और तरक्की हासिल करें जैसे पहले करते हैं। ठीक है मुजम्मिल, आपसे मैं अगर ये पूछूं कि लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं या आपको मुश्किलात हुई, प्रॉब्लम हुई, या जैसे ही आपने स्टार्ट किया लोग खुद ही जुड़ते चले गए? नहीं, खुद ब खुद। और ये कितने लोगों से स्टार्ट हुआ था? आप ही दोनों से? नहीं, हम लोग 6 दोस्त थे स्कूल में, 6 से 8 दोस्त थे, एग्जैक्ट नंबर मुझे भी याद नहीं, लेकिन हम लोग ने 75 डब्बों से सिलसिला शुरू किया था। मैंने उनको बताया अभी मुख्तार साहब को, बढ़ता गया, सालाना बढ़ता गया। हमने फिर पहला दस्तरखान लगाया था 3 साल बाद शहबाज पर, खयाबान शहबाज पर, डिफेंस में। ये हम लोग भी उधर ही करीब इलाकों में रहते थे, तो हम लोग के लिए आसानी थी उधर बहुत कि उधर ही जाएँ, उधर ही वॉलंटियर करें, और हम स्कूल के दोस्त करते थे। अब हमारे पास 400 वॉलंटियर से ज़्यादा, 25 दस्तरखान से ज़्यादा, 250 अनपेड हैं, 150 पेड हैं, 150 पेड वॉलंटियर्स हैं, 250 अनपेड वॉलंटियर्स हैं। खुद ब खुद लोग आते हैं, सिलसिला बढ़ता जाता है। सारा काम मैं वही बताऊं, अल्लाह करवाता है, हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं। क्या बात है, बेहतरीन, बिल्कुल ऐसे ही सिलसिला है। लेकिन दस्तरखान के साथ साथ जिस तरह उन्होंने बताया कि एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हेल्थ पे क्या काम कर रहे हैं आप लोग इस वक्त? सर पूरा साल हमारे पास केसेस आते रहते हैं, ठीक, एवरी डे
कोई ना कोई केस आता है, कभी फीस का केस आता है, कभी हेल्थ का केस आता है, किसी के दिल का मर्ज होता है, किसी का कुछ मर्ज होता है, उनके पास पैसे नहीं होते जी और तकलीफ में होते हैं, तो हम कोशिश पूरी करते हैं अपनी तरफ से कि कोई डोनर आ जाए, हम खुद अपने घर से कहीं से भी ला के डोनेशन और उनका केस सॉल्व कर दें। मुख्तलिफ रेंट के केसेस भी आते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के केसेस आते हैं, बस हम तो कोशिश करते हैं और जिसकी सॉल्व हो जाए उसकी दुआ लग जाए। सुभान अल्लाह, बेहतरीन, बहुत ही खूब। और ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। मुज़म्मिल हमारे साथ, महमूद भवानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर हैं, जो कि ख़ास करके हमदर्द हाथ के फाउंडर हैं। इसी तरीके से हमारे साथ अब सैयद राफ़ी अली कंधारी मौजूद है, ये भी फाउंडर हैं। और माशाल्लाह मैं कहूँगा कि अब अरसला ऐसा लगता है कि यूथ ने जो है ना जिम्मेदारी ले ली है खुद। हम बरसों से देखते आ रहे हैं और लोगों पर पहले ना हम लोग कहते हैं ना कि रिलाय करते थे कि शायद अब कुछ अच्छा हो जाएगा, शायद सिस्टम में काम हो जाएगा, शायद कुछ और अब बेहतरी आ जाएगी, लेकिन अब यही लगता है कि सब कुछ खुद जो है ना अपने आप को मनवाने के लिए और लोगों के काम आने के लिए खुद को खड़ा होना पड़ेगा। ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा, आगे बढ़ेंगे। और आज थोड़ी सी हम बात करना चाह रहे थे इस्लामिक टॉपिक पे, जिसमें हम शिर्क के हवाले से थोड़ी बात करना चाह रहे थे। आज एक मॉडर्न दौर में हम देखते हैं कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं कि हम बड़ी आसानी से बहुत लाइटली कोई भी बात कह देते हैं और उसके बाद कहते हैं, हालांकि अगर उसको हम तफसीली तरीके से देखें तो शायद ऐसा लगता है कि अल्लाह ना करे हम कहीं मुशरिक ना हो जाए, लेकिन फिर भी हम उसको जिद्दत जो है ना पसंदी की तरफ ले जाते हैं, या कभी कभी हम जो है वो मुशरिक होने के बाद भी उसको एक अलग रूप दे देते हैं। आज मेरे साथ जो मौलवी मौजूद है, हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद है, मुफ्ती उस्मान गनी साहब मौजूद है, जो कि नाइब रईस हैं, जो कि जामे दारुल उलूम फतहिया कराची से इनका ताल्लुक है। इसके तरीके से फाजिल हैं ये जामे सुफ़ा कराची के। मैं चाहूँगा कि आप जो है वो यकीनी तौर पर शिर्क के हवाले से और ख़ास करके जो है जिद्दत पसंदी का जो एक सिलसिला है इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुख्तार भाई, जिद्दत पसंदी ख़ुद जो है एक मुस्तहसन जज्बा है और इंसान की फ़ितरत ये ख्वाहिश के ऐन मुताबिक है। अगर ये जिद्दत पसंदी का जज्बा ना होता तो फिर पत्थर के दौर से लेकर एटम के बम तक जो है हम ना पहुंच सकते थे। इसी तरीके से मोमबत्ती की रोशनाई से आज स्ट्रीट लाइट्स तक हम नहीं पहुंच सकते थे। इसी तरीके से यही जिद्दत पसंदी है जो हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इन्होंने ही इस चीज़ को इख्तियार करके 25 रुपये वाली रोटी को 10 रुपये तक लेकर आए और ये एक मुस्तहसन किरदार माशरे के अंदर निभाया है। लेकिन जहाँ ये हकीकत के अंदर जो है मुस्बत किरदार भी अपना रहा है तो वहाँ जो है मनफी किरदार भी अपनाता है कहीं ना कहीं। वो इस तरीके से कि ये जिद्दत पसंदी आम तौर पे फहाशी और औरियानी का ज़रिया भी बन रही है और आम तौर पे जो है अगर कोई बंदा इसी के ऊपर इन्हिसार कर ले और मुकम्मल तौर पे इन्हिसार कर ले तो फिर शिर्क की तरफ भी चला जाता है। जिस तरीके से आपने दूसरी बात इरशाद फरमाई, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये शिर्क की दो किस्में हुआ करती हैं, एक शिर्क हकीकी, एक शिर्क मानवी। शिर्क हकीकी तो ये है कि अल्लाह ताला के साथ ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराया जाए। शिर्क मानवी ये है कि अल्लाह ताला के अलावा किसी अफराद या अशिया के ऊपर ऐसे इन्हिसार किया जाए जैसे कि इन्हिसार अल्लाह ताला के ऊपर करना चाहिए। अब यही इन्हिसार की मिसाल ले लिया जाए और मनफी पहलू को ले लिया जाए जैसे जिद्दत पसंदी की, तो आजकल के दौर के अंदर मिसाल के तौर पे महकमे मौसमियात है, वो ये बताता है कि भी बारिश होने वाली है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ बरसनी है, कितनी मिकदार में बरसनी है और कब बंद होनी है, इसका इल्म तो नहीं है इनके पास, एग्जैक्टली इल्म तो नहीं है। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड को ले लिया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जिद्दत आ गई है कि ये बच्चा है या बच्ची, लड़का है या लड़की, मुज़क्कर है या मुअन्नस, कितने हफ्ते हो गए हैं, कितने महीने हो गए, लेकिन ये जिएगा या मरेगा, जिंदा आएगा या मुर्दा आएगा, और इसने अपनी रिज़्क़ कितना कमाना है, कितनी ज़िंदगी जीनी है, कब इस दुनिया से तशरीफ़ लेकर जाना है, कब और कैसे मरना है, इसका इल्म तो इसके पास नहीं है। अल्लाह ताला को कुरान क्या कहता है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। 5 चीज़ें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। वो क्या? ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसका इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। 5 चीज़ें क्या? इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत कब होगी बेशक अल्लाह ताला ही जानते हैं। व युनज़्ज़िलुल गैथ, बेशक अल्लाह ही जानता है कि बारिश ने कब कहाँ कितना बरसना है। व यअलमु मा फिल अरहाम, शिक में मादर के अंदर मुज़क्कर है मुअन्नस है, वो जिएगा मरेगा, रोज़ी कितनी मिलेगी और रोटी कितनी मिलेगी, वो कब कहाँ कैसे मरेगा वो अल्लाह को ही मालूम है। व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, हर नफ्स ने कल के दिन कहाँ से कैसे किस तरीके से कितना कमाना है, कितनी रोज़ी हासिल करनी है, अल्लाह ही जानते हैं। 5वीं चीज़, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, इंसान ने कब
کہاں کیسے کس حالت میں مرنا ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. لہٰذا اگر انسان یہ جدت پسندی کی دوسری صورت کے اندر اگر مکمل انحصار ان جدید آلات کے اوپر کرنے لگ جائے اور پھر اللہ کی ان آیات کو بھول جائے تو وہ پھر شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے. میں آج کے اس پروگرام میں مختار بھائی آپ کے تھرو جو ہے آپ کے توسط سے اس پروگرام کے ذریعے میں ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں. وہ پیغام عظیم الشان یہ ہے: لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا فاتح الا اللہ، لا معبود الا اللہ. بے شک میرا اللہ ہی ہے، میرا اللہ رازق ہم مرزوق، میرا اللہ مالک ہم مملوک، میرا اللہ خالق ہم مخلوق، میرا اللہ معبود ہم عابدین ہے. لہٰذا اس یہ جو روش ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور مکمل توکل اور اپنی جو ذہنی جو فلسفاتی جو ہماری جتنی بھی دوڑے ہیں اس کا رخ اللہ کی طرف کرنا چاہیے. تبھی ایک انقلاب برپا ہوگا، تبھی جو ہے ایک بہترین اور نبوی سوسائٹی اور نبوی ماحول رونما ہو جائے گا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور یہاں آگے بڑھتے ہیں جلدی سے بھاگ کر شیف کی طرف کہ شیف بیرا مٹر پلاؤ کہاں تک پہنچا ہے؟ چاولوں کا مٹر ملے گا تو مجھے شیف یہ دیکھیں اچھا ہو گیا مذاق، لیکن مجھے چاہیے یہ میرے لیے بننا ہے. میں نے چاول اس میں ڈال دیے تھے، مٹر گل گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اب میں چاول گلنے کا ویٹ کر رہی ہوں. صحیح ہے. بس وہ دم پہ رکھوں گی. اور یہ میں یہاں پہ کباب تل چکی ہوں. میں نے انڈا لگا کے کباب تلے ہیں، وہ اندر سے بہت سافٹ ہوتے ہیں. اگر ہم انڈا لگا کے نہیں تلیں گے نا تو وہ ہم آپ نے دیکھا ہوگا کرسپی بسکٹ ٹائپ کے وہ ہوتی ہیں، پھر وہ مطلب ٹی ٹائم میں کھا سکتے ہیں. مجھے پلاؤ کے ساتھ اس طرح کے پسند ہے تو میں نے اس طرح تلے. ٹھیک ہو گیا. شیف میرا ایک سوال ہے آپ سے. ہم چاول بناتے ہیں اکثر وہ کھچڑی سے بن جاتے ہیں، مطلب پلاؤ بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی اور چیز بن جاتی ہے. اس کا کوئی نام رکھنا چاہیے ضرور. لیکن یہ والا جو مٹر پلاؤ بنا رہی ہے جو کہ کھلے کھلے ہوں گے، مجھے پتا ہے اچھے والے رائس، یہ کوئی اس کی ٹپ مجھے دے دیجیے ذرا. اس کی ٹپ یہ ہے کہ پانی دیکھ کے ڈالیں. نہیں وہ کوئی اندازہ کوئی میجرمنٹ دیکھیں کہ ایک کپ ایک بول میں اگر رائس تو پانی ایک گلاس، جس گلاس میں آپ نے چاول لیے نا، اگر آپ چاول دم کر رہی ہیں آپ اسی کو ہم پہلے سوک کرتے ہیں، پانی میں بھگوتے ہیں. جب ہم پانی میں بھگوتے ہیں اس کے بعد وہ پانی چاول آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، وہ پانی پی لیتا ہے. تو ہمیں دیکھ کے ڈالنا پڑتا ہے. جب بھی آپ چاول دیگچی میں ڈالیں نا اس کے بعد آپ یہ دیکھو کہ 1 انچ پانی اوپر ہو بس. اچھا ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ کے چاول خراب نہیں ہوں گے. پھر آپ دم میں پکاؤ اسے. ٹھیک ہو گیا. یہ باسمتی رائس کا آپ بتا رہی ہیں؟ بالکل باسمتی. اور اگر کوئی سیلا ویلا پکا رہا ہے، کوئی بہت ایکسپرٹ بیٹھا ہے، پھر کیا کریں؟ مجھے سیلا نہیں میں بناتی، میں باسمتی بناتی ہوں. صرف سیلا میں زردہ بناتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو کباب بن رہے ہیں وہ تو بتا دیں، وہ کس چیز کے بن رہے ہیں؟ کیا وہ بیف کے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہیں کباب ہم نے بنائے ہیں، گوشت ڈالا. ٹھیک ہے. 1 کلو گوشت ہے تو میں اس میں 1 پاؤ صرف ڈالتی ہوں. اس میں دال چنے کی دال 1 پاؤ، گوشت 1 کلو، کٹا ہوا دھنیا 1 ٹی اسپون. ٹھیک ہے. اور اس میں ڈالوں گی میں کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹیبل اسپون، تھوڑی ہری مرچیں 10 سے 12 کٹی ہوئی وہ ڈالوں گی. اس میں پیاز ڈالوں گی 1 چھوٹا، ادرک کا پیس کوٹ کے ڈالوں گی، تقریباً 2 انچ کا کوٹ کے ڈالوں گی. لہسن میں کوٹ کے ڈالوں گی، تقریباً پورا جو جمع ہوتا ہے گول جو بنا چھلا ہوا ہوتا ہے اس کو آپ چھیلو اور پھر اس میں ڈالو کوٹ کر. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں نا، میں سل پہ پیستی ہوں. ہاں کیا بات کی آپ نے. بالکل یہ آپ نے کی برسوں کی روایت اور آج کا انداز. میں ایک ٹپ ایسی بھی بتاؤں گی کہ سل پہ نہ بھی پیسیں پر سل جیسا ٹیسٹ آئے گا. کیا بات ہے. مطلب پیسیں گے مشین میں، لیکن مشین میں بھی نہیں پیسیں گے پھر بس وہ ہم بتائیں گے آپ کو. چلیے تھینک یو سو ویری مچ. آپ بناتی جائیے، ہم جب بالکل تیار ہوگا آپ کی طرف آئیں گے. اور ناظرین یہاں آپ سے بات کریں گے. وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ. واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. ناظرین ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید آسان رمضان میں. اور جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہے اس وقت جو ہے ہم بڑی زبردست بات کریں، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ سوال جو ہے میں چھیڑ رہی تھی ابھی مختار کو بریک سے پہلے کہ بہت بات کر لی مختار، آج مجھے کم ٹائم ملا ہے، لیکن میں نے سوچا کوئی بات نہیں. چلے مختار آپ ہی سوال کریں. جی ہمدرد ہاتھ جو ایک آرگنائزیشن ہے، یہ بہت سارے کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے ایجوکیشن کے بارے میں بتایا، ہیلتھ کے بارے میں بتایا، ڈونیشن کے بارے میں بتایا. ہم پوچھنا چاہیں گے اب جیسے رمضان میں لوگ اگر آپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں رافع، تو کس طرح وہ جڑ سکتے ہیں آپ سے؟ دیکھیں بہت سمپل ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اب جو جدید دور ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے اور ہر چیز سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ دیکھیں مین سٹریم چینلز کے ساتھ ساتھ
सोशल मीडिया का भी बहुत रुझान है, और मैं अगर नाम लूँ तो जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी अपनी मार्केटिंग वहीं करते हैं। तो हमने जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और अब तो जदीद दौर में टिकटॉक को भी हमदर्द हाथ की एक्टिविटीज़ के लिए एक मेन फोकस पॉइंट बना दिया है, जहां हमारी डेली अपडेट्स सकती हैं। अब लोग सवाल करते हैं जी कि आप कौन लोग हैं, आप कैसे दस्तरखान लगा रहे हैं, तो हमारे अलग अलग नुमाइंदे जो हैं वो अलग अलग जगहों से अपडेट देते हैं। तो उसी तरह वहाँ पे हमारे पेज पे नंबर्स भी होते हैं, हमारा जो पेज के मैसेंजर्स हैं उधर आप हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें ढेरों केसेस आते हैं और कई डोनेशंस जो आती हैं वो पेजेस के थ्रू आती हैं। और जैसे मुजम्मिल ने बताया कि हमने जो शुरू किया वो फैमिलीज से और घर से सिलसिला शुरू किया, और आज माशाल्लाह से कई 100 फैमिलीज जो है लोगों के थ्रू हमसे जो है वो जुड़ गई हैं, और अब सोशल मीडिया के थ्रू भी काफ़ी लोग जो है हमसे जुड़ गए हैं। तो आई थिंक इट्स द ईजीएस्ट वे। आप वीडियो देखें, आप हमारा काम देखें, आप दिल मुतमईन होता है, आपको लगता है कि क्रेडिबल है, बच्चे काम कर रहे हैं, एक ऑथेंटिसिटी होती है। मैं तो दावत देता हूँ हर वीडियो में कि भाई कराची में 20 जगहें हैं, कहीं के तो आप करीब रहते होंगे, लांडी के अंदर है, लियारी के अंदर है, नॉर्थ नाज़िमाबाद में ज़ियाउद्दीन अस्पताल के सामने जो दस्तरखान लगे हुए हैं। फिर डिफेंस के अंदर क्योंकि डोनर साइकिल ज्यादा बड़ा है, वो आते हैं खुद अपने हाथ से सर्व करना चाहते हैं, दूर दराज नहीं जाना, ये भी अच्छी चीज है। तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी इजी, कोई भी लोकेशन पे आ जाए, हमारे नंबर जो है वो हर पोस्ट के अंदर है, हर वीडियो के अंदर है, और आप मैसेंजर के थ्रू हमसे बहुत इजीली रब्ता कर सकते हैं। और आजकल के नौजवान है हर चीज के लिए जब फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यूज हो रहा है, सो व्हाई नॉट फॉर समथिंग फॉर अ बेटर कॉज, फॉर अ ग्रेटर कॉज। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, ये तो रमजानों की ड्राइव अब जो है कंटिन्यू आप लोगों की चल रही है, अब इसके बाद आएगी ईद। ईद पे भी ज़ाहिर है गरीब नादार लोगों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा आपसे मुज़म्मिल पूछना कि ईद के हवाले से कुछ ऐसा सेटलमेंट किया हुआ है कि पहले से डिसाइडेड है कि क्या क्या करना है? बिल्कुल सर, हर साल तो हम नहीं कर सकते थे। पिछले साल हमने 2 जगह पर ईद का मेला लगाया था बच्चों के लिए, माशाल्लाह। हमारे दस्तरखान पर 250 वॉलंटियर, मैंने आपको बताया, जो अनपेड है 150 पेड है। अगर उनके सिर्फ बच्चे से हमारे ईद मेले पे आए, उनको हम गोटी बैग्स देते हैं, पेंसिल बॉक्सेस देते हैं, उन वॉलंटियर्स को हम हर साल नए जोड़े देते हैं। डाइनर्स कंपनी का आपने नाम सुना होगा, डाइनर्स ब्रांड हमें हमेशा मदद करती है, हज़ारों की तादाद में हमें सूट देती है, जो हम अपने वॉलंटियर्स को भी देते हैं और भी गरीब मुख्तलिफ इलाकों में देते हैं। डाइनर्स देती है, कुर्ता कॉर्नर बहुत बड़ा ब्रांड है, ये 8-8, 10-10 हज़ार के एक जोड़े, अगर आप हज़ारों जोड़े ले रहे हैं तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि लोगों के कारोबार तो चल रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जब तक अपनी, मैं कहूँगा कि कॉस्ट में से गरीबों के काम नहीं आएंगे तब तक के बरकत भी नहीं होगी। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि भले जितना भी बड़ा ब्रांड हो या छोटा ब्रांड हो, तो आपने मदद जरूर करनी है लोगों की। ठीक हो गया। आप देख रहे हैं पीछे वीडियो चल रही है, इसमें छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही। इनसे आज मैं मिलके आया हूँ, माशाल्लाह। बिल्कुल आज मिलके आया हूँ इन सब बच्चों के। कहाँ के रिहायशी हैं? ये खेपड़ों के आगे कोई गांव था, तकरीबन 30 किलोमीटर आगे, जो यहाँ से तकरीबन कराची से 300 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ इन बच्चों से मिलके आया हूँ। मुझे हालात देख के अफसोस होता है, लेकिन इन बच्चों की भी तो ख्वाहिशात हैं, पढ़ना होगा, लिखना होगा, खेलना होगा, कूदना होगा। इनके साथ मैंने आज क्रिकेट भी खेली है, तो इनको भी खिलौने चाहिए, ईद पे खुशियाँ चाहिए, नए कपड़े चाहिए। बहुत खुश हुए थे आज देख के। आज तो हम राशन ड्राइव पे गए थे तो उनके घरों में खाना दिया, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी, पूरी मेहनत से, डोनेशन से, सब लोगों की मदद से मैं चाहूँगा कि मैं इनको खिलौने पहुँचाऊँ, इनको ईद के जोड़े पहुँचाऊँ, ताकि ये भी खुश हों, इनकी भी ईद हो जैसे हम ईद मनाते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये तो आपने सब वो लोग बताए कि बिजनेसमैन हजरात आपसे जुड़े हैं, लोग हमारे यहाँ तो वैसे भी कराची की अगर हम स्पेशली बात करें तो लोगों के अंदर मदद का जज्बा बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली रमज़ान में ये आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएगा। ये तो बात हो गई आवाम की, जो कि बहुत अच्छी है और मदद भी करती है। क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई आपको ऐसी चीज़ मिल रही है, कोई फ़ायदा ऐसा हो रहा है, साथ दे रही है गवर्नमेंट आपका या नहीं? आप अपना कॉज लेकर भी गए हैं वहाँ या नहीं? हम बस इदारा रजिस्टर कराने गए थे, बाकी तो हम, जो हमारा मिशन है वो यही है कि यूथ को हम इकट्ठा करें और खुद अपनी मेहनत से खुद हम आगे बढ़ के काम करें। हमें गवर्नमेंट और लोगों से नहीं, हमें अपने लोगों से। लेकिन जब आप बड़े पैमाने पे काम करते हैं ना, और आप चाहते हैं कि बहुत आगे तक चला जाए काम, तो इन दी एंड आपको रियासत की मदद चाहिए ही चाहिए होती है, उसके बगैर आप बहुत बड़ा कॉज अचीव नहीं कर सकते। मैं इसका मुख्तसर सा जवाब दूं, तो हम जिस मुल्क में रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब तक आप अपनी खुद की फॉल्ट्स नहीं पॉइंट आउट करेंगे आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। हमारा मुल्क किसी भी इदारा हो, आपका फर्म हो, आपका बिजनेस हो जिससे आप कमाते हो, या चैरिटी हो, एक चीज होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारे साथ काम करते हैं। मेरे ख्याल से हर सेक्टर में
हर सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए। उसके अंदर ये होता है कि प्राइवेटाइजेशन से ना थोड़ा सा एक क्वालिटी आपकी जो है वो ऊपर आती है, और जो गवर्नमेंट सपोर्ट होता है उसके अंदर गवर्नमेंट को भी रिलीफ मिलता है कि चलो भाई हमारे लोग हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो जाए। अब आप देखें माशाल्लाह से सिंध के अंदर हेल्थ केयर पे कितना काम हो रहा है। अभी जैसे जिना हमारा है, कितने वहाँ लोग पूरे सिंध से आते हैं, इतनी नई बिल्डिंग माशाल्लाह बन के, नए डॉक्टर्स, क्योंकि मैं फिजिकली खुद भी वहाँ जाता रहता हूँ। उसके अलावा गंबट में बेस्ट लिवर का वो बना है, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। दिस इज डोनेटेड बाय अ लॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। तो मेरा यही वो होगा कि गवर्नमेंट हमारे साथ जुड़े। अभी हमें कोर कमांडर नहीं, नॉट कोर कमांडर, हमें सेक्टर इंचार्ज ने भी बुलाया था ब्रिगेडियर साहब ने, और हमारी जो हमने काम किया उसको उन्होंने सर अंजाम दिया, और उन्होंने बोला कहीं भी बेटा आपको सिक्योरिटी की नीड हो, कुछ भी हो, हम आपके साथ खड़े। टिम्बर मार्केट जो है, शायद मुजम्मिल भूल गए बताना, टिम्बर मार्केट एक जगह है जिसके साथ घास मंडी लगती है, जहां हमने फ्रूट स्टॉल लगाया। यू नो वेयर इट इज? इट्स अ गवर्नमेंट बिल्डिंग। तो हमने उसको आबाद कर दिया। तो हम चाहते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि छोटे हैं, सीख रहे हैं अभी, यू नो, यू स्टेप एवरी डे, यू लर्न एवरी डे, एवरी स्टेप इज अ लर्निंग स्टोन। तो हम ये चाहते हैं कि हम काम बढ़ाते जाएं। तो ये जो गोस्ट स्कूल्स की मैंने बात की ना, और ये जो हेल्थ सेक्टर के अंदर डिस्पेंसरीज खोलने की बात की, हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से जगहें लें, और इंशाल्लाह अपनी मदद आप और अपने लोगों के साथ मिलके और गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ इसको आगे बढ़ाएं, ताकि गवर्नमेंट और हम सब लोग मिलके इस पाकिस्तान में इंशाल्लाह। बिल्कुल नियत साफ, मंजिल आसान, और जब आपकी नियत साफ है और आप काम भी बिल्कुल अपने विजन के साथ लेके चल रहे हैं, तो जरूर इंशाल्लाह ताला पॉजिटिवली आगे जाएगा। और हम भाग कर जा रहे हैं शेफ की तरफ। मुस्कुराहट आ जाती है मेरे चेहरे पे भी, शेफ के चेहरे पे भी। जल्दी से बताइए मटर पुलाव कहां तक आ रही है? क्या अरसला आती है आज? आ नहीं रही अपनी फरमाइश। नहीं, आज आपने देखा शुरुआत जरा कुछ डिस्टर्ब सी हुई है, तो मैंने कहा अभी बैठे मतलब ये देखें। सही है। अब आप ये कह रहे थे चावलों का रंग खराब, अगर कैमरा फोकस करेगा तो बताएगा जरूर कि रंग खराब है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। रेडी है हमारे, रेडी है। मैं अब सर्व करने लगी हूं। बात है भाई, सही है। मतलब आज जो है वो हम सारे स्टाफ वाले खाएंगे, आज अर्सला नहीं खाएंगी, कुछ ऐसे? ऐसा हो ही नहीं, ऐसा ही है। आज मेरा मूड वैसे ही शदीद खराब है इस वक्त, ऐसी बातें ना करें। इस वक्त ऐसी बातें ना करें, फड्डा शुरू हो जाएगा। फड्डा शुरू है, कल से नजर नहीं आऊंगी फिर। अच्छा जी, और ये मुझे लग रहा है रेडी हो रहा है भाई, डिश आउट हो रहा है, डिश आउट हो रहा है भाई। बस गरम गरम है, जिसने खाना आ जाए। और पैसे लाते आपने एक प्लेट बना के साइड पे रख देनी है, पैसे लाते रहे और यहाँ दे के लेके जाते रहे। अच्छा, कबाब भी रेडी हो चुके हैं जी। तो कबाब तो मैं घर से बना के लाई थी। खाना चाहें सिर्फ कबाब, तो कबाब ही खा लेंगे? हाँ, जो खाना चाहें वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। ये देखें भाई, अब चावल भी खिले खिले हैं। ये हमारा कैमरामैन बताएगा कि खिले हैं कि नहीं है। जी बिल्कुल खिल रहे हैं। ये फूल खिल चुके हैं बस। और ये हमें भी भूख लग चुकी है। हाँ, हर तरफ भूख की आवाजें आना शुरू हो चुकी है शेफ। हर तरफ की भूख की आवाज आ रही है। और कबाब भी आपके रेडी हो चुके हैं? बिल्कुल, फ्राई भी आपने डिश आउट कर दी कि हम चले, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। अब जो है प्रोग्राम बिल्कुल स्पीड में, आज मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही स्पीड में जा रहा है, क्योंकि शायद मैं देर से आई उस वजह से। लेकिन खैर हम बढ़ रहे हैं जी इख्तिताम की जानिब, और इख्तिताम से पहले हम गुजारिश करेंगे अपने मेहमानाने गिरामी से शॉर्ट और क्विक मैसेज दे दीजिए लोगों को। वो रहा आपका कैमरा। देखें, मैं सबसे पहले तो मुखातिब हूँ हमारी यूथ से, जो कि मेरे से शायद 1-2 साल बड़े या कई साल छोटे होंगे। हमारी एनजीओ ने जो काम शुरू किया, हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ये एक इस तरह इदारा बन जाएगा। इफ्तारी का एक पर्पस था, और हमारे पास केसेस आते गए, और हमने ये काम जो है वो सर अंजाम दिया। हमें लोगों की बड़ी सपोर्ट थी, और अब इदारे भी साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान जब कायदे आज़म ने बनाया, अगर वो हिम्मत हार जाते तो आज आपके पास आपका मुल्क नहीं होता। जिसका मकसद ये है कि आज भी आप हिम्मत ना हारें। किसी काम में रुकावट आती है, ये तो बल्कि इतना नेक काम है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं से असबाब अल्लाह बनाता है, और ये काम भी अल्लाह का है। हम तो शिकायत कर देते हैं अल्लाह तेरा काम रुक रहा है, और कहीं ना कहीं से कोई अल्लाह ऐसा काम करता है, ऊपर अलग एक प्लानिंग हो रही होती है, इंसान अलग एक प्लानिंग करता है। तो हिम्मत ना हारें, डट के काम करें, नेकी के काम में आगे बढ़ें। पर्सनल लाइफ में अल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, और इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि इसी के साथ हमारे पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बेहतर हो, और बढ़ चढ़ के इन कामों में हिस्सा ले, क्योंकि कराची वैसे ही नंबर 1 है। पूरा पाकिस्तान जो है वो चैरिटी के मामले में नंबर 1 हो, और हमारा जो मुल्क है वो बेहतरी की तरफ जाए। मुज़म्मिल महमूद भवानी, आपसे भी मैसेज लेना चाहेंगे? मैं वाकई मुख्तसर सा मैसेज दूंगा। प्लीज़ 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 शेयर, सपोर्ट एंड डोनेट टू हमदर्द हाथ। थैंक यू। बेहतरीन। ये तो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट मैसेज हो गया। चले जाओ मुफ्ती साहब की तरफ। आप एक शॉर्ट मैसेज दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी होती है इस बात को जानकर और सुन कर के
پہلے جب تعاون کی بات ہوتی تھی تو درمیان میں ویلفیئر ٹرسٹ آتے تھے اور پھر جو ہے مدارس مساجد درمیان میں آتی تھی. اب تو الحمدللہ وہ لوگ درمیان میں آ رہے ہیں جن کے اندر کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہے اور کرنٹ بھی بہت زیادہ ہے, اور وہ ہماری اس دور کی یوتھ ہے, ہمارے نوجوان ہیں جو اب میدان میں آ چکے ہیں, اور وہ ان کا یہ عزم ہے کہ نیور بگ اپ, نیور گیو اپ. لہٰذا اب یہ ہے کہ ہر کوئی بھی ہے اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے, فیل بگ سو ڈیل بگ, لہٰذا آگے بڑھیں اور کام کریں. اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے ہم اپنے تمام مہمان کرامی کا, اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب کا اور ہمارے ساتھ جو نعت خواہ ان کا بھی, اور شیف آپ کا بھی کہ آپ بڑے مزے مزے کے کھانے کھلا رہی. اس کے ساتھ ساتھ جو شکریہ سب سے زیادہ بنتا ہے نا ادا کرنا, وہ ہوتا ہے ہمارے اسپانسرز کا. تو جی ہاں, سبلائن ٹرینڈز ہے جو کہ آفیشیل, آپ جا کے ان کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. حبیب کلیکشن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. ساراز پرفیوم جو کہ خاص کر کے ہمیں معطر کر رہا ہوتا ہے, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے. روایت کوکنگ آئل آپ کا بھی شکریہ کہ آپ کی وجہ سے یہ برسوں کی روایت آج بھی برقرار ہے. اسی طریقے سے کراؤن فوڈ آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی طریقے سے سلمان فوڈز آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ایچ کے پوائنٹس جو کہ آن لائن ڈیلز کر رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اسی طریقے سے جھلک آئل جو کہ ایک نیچرل ہیئر کی ٹونک بھی ہے, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی بالکل میں چاہوں گا اجازت کا وقت ہے, لیکن ہم اجازت سے پہلے جو مختار کا بہت سب سے اسپیشل خاص کام ہوتا ہے وہ تمام مہمانان گرامی کو تحائف دینے کا سلسلہ, اور مختار قریب چلے جائیے گا. بالکل جی, میں چاہوں گا سب سے پہلے رافع آپ آ جائیں اور ہماری طرف سے چھوٹا سا آپ قریب جائیے, آپ گیسٹ سلمان فوڈز کی جانب سے یہ آپ کے لیے ہے. بہت شکریہ. اسی طریقے سے مزمل یہ حبیب کلیکشن کی جانب سے ایک بہت چھوٹا سا گفٹ ہے, قریب چلے جائیے, یہ آپ کے لیے ہے. بہت شکریہ. اسی طریقے سے ہم بلائیں گے مفتی صاحب کو. مفتی صاحب پلیز آپ آ جائیے. یہ نذرانہ چھوٹا سا سلمان فوڈز کا, یہ آپ کے لیے ہے. اسی طریقے سے جھلک کی جانب سے ایک ہینڈ سینیٹائزر ہے اور آئل ہے جو کہ بالوں کی نرشنگ کے لیے, یہ آپ کے لیے ہے. بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلیے جی, اور ناظرین یہاں وقت ہو چکا ہے اجازت کا. کل بھی اسی پلیٹ فارم پر, اسی جگہ آپ سے یہیں پر اسی وقت ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. جاتے جاتے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, اور میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین, اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا ہم پلہ کو